we had discussed, I had already summarized that today we are going to start with the chapter Poverty as a Challenge. Right? The chapter is bit long. Why it is long? Because you have to go in depth. And then we would be completing it in 2 or 3 sessions. I request once again everyone that in case you miss any class, kindly go through the YouTube channels that it is specifically put on the YouTube channel only because you are able to. So here we are starting with the chapter Poverty as a Challenge. In the intro class, I had already told you that this chapter is about why, what is the meaning of poverty and why it is a challenge. चैलेंज का मतलब यहां पर है बेटा एन ऑब्स्टिकल. चैलेंज का यहां मतलब है एन ऑब्स्टिकल. सी एनी कंट्री, कोई भी जो कंट्री होती है, अगर आप उसको देखो, अगर आप उनके ग्राफ को देखो, तो इट इज द पीपल हु आर पेइंग द टैक्सेस एंड विद दैट द जो कंट्री होती है वो डेवलप करती है. तो इसे जो पहला हमने चैप्टर पढ़ा था पीपल एज रिसोर्स, तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर हम लोग पढ़ लिख कर, अगर हम लोग पढ़ लिख कर, इफ वी आर अर्निंग, if we are paying the taxes, if we are adding to the GDP of our country, so that helps in the development of the country. On the other hand, if we are not employed, if the number of people who are poor, पुअर क्यों होंगे, नौकरी नहीं होगी तो पुअर होंगे. इफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड, नॉट able to fulfill their needs, तो the country cannot develop. So that is why poverty is a challenge. First, the chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. हमारे यहाँ पर अगर हम इंडिया के लिए बोले ना, तो illiteracy, poverty, these are the two challenges which we have always been facing. After discussing this multi-dimensional problem, हम लोग जो देखेंगे कि how it is seen, poverty trends in India, world, ये हम देखेंगे, causes of poverty and anti-poverty measures. This I had already discussed with you, right? In our daily life, अब हम start कर रहे हैं, we come across many people who we think are poor. झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं लोग. Now, एक क्वेश्चन कई बार आता है, दैट मैम झुग्गी झोंपड़ी वालों के पास तो सब कुछ होता है, तो मैम उनको हम पुअर क्यों बोलते? आप लोग तो कुछ पूछते नहीं हो, बट जनरली बच्चे पूछते हैं, मैम हमने तो झुग्गी झोंपड़ी में देखा था, उनके पास तो टीवी भी था, मैम उनके पास तो सब कुछ है, तो मैम हाउ? तो बेटा, चीज होना नहीं, देयर इज अ डिफरेंस. देयर आर पीपल हु गिव देम दीज थिंग्स. दे कैन नॉट गो टू द, जैसे आपको आपका मन किया, आज आपका बर्थडे है, यू वांट टू सेलिब्रेट इट इन मैकडोनाल्ड, यू वांट टू सेलिब्रेट इट इन केएफसी, यू कैन गो एंड सेलिब्रेट. वो आपका जो है, इट इज नॉट पॉसिबल. जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, जो डेली वेजेस में काम करते हैं, जिनकी आज नौकरी है तो है, आज और मतलब कि वो फैक्ट्री गए, वहां उनको आज पैसा मिल गया तो उनका पेट भर गया. रिक्शा पुलर्स,
Then people who are working, the child who are also working in the dhabas, beggars. That means large number of people are there who are not able to fulfill their needs. Now let us come to these questions. This 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. A wheat flour mill क्या होता है? आटे की चक्की. He manages to earn about 1500 per month when he finds employment. अब डेली वेज का मतलब क्या है? आज पैसा है तो आज मतलब कि काम है, लो जी भाई तुमको मिल गया. तो आप खुद सोचकर देखो कि इज इट पॉसिबल? द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6. उसकी वाइफ, वो और 4 बच्चे. नाउ यू कैन इमेजिन इतना लंबा फैमिली. प्लस he has to send money home to his old parents. His father is a landless laborer who depends on Ram Charan and his brother. Ram Charan lives in one room rented house in a crowded basti, a slum. It's a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife works as a part-time maid in Fuse and manages 800 rupees. They manage a meager meal of dal and rice. अभी आज की डेट पर तो दाल बहुत महंगा है. Let us not contemplate on that. But उनका कहने का मतलब है कि वो बहुत अच्छा खाने का. उसका जो बेटा है, he is also working. उसको 300 रुपये मिलते हैं. कोई स्कूल नहीं जाता. They have only 2 pairs of hand me down clothes. Hand me down मतलब दूसरों का दिया हुआ. और शूज वो तो उनके लिए लग्जरी है. बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, they don't have any health care. This is the scenario. I'll give you one example which I know. After this, Lakha Singh belongs to a small village near Meerut. मतलब वो तो था आपका अर्बन में. Now we are talking about rural. His family doesn't own any land, so they do odd jobs for the big farmers. Work is erratic. Erratic मतलब कभी बहुत ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा. And so is income. At times they get 50 rupees for a hard day work. कभी कभी उनको वर्क की जगह वीट, दाल या वेजिटेबल मिल जाता है. मतलब काम की जगह, पैसा की जगह सामान. The family of 8 cannot manage 2 square meals a day. 2 वक्त का वो खाना नहीं खा पाते. Lakha lives in kacha house. The women spend day chopping fodder and collecting firewood in the field. लकड़ियां काटने का काम. उसके फादर टीबी पेशेंट थे जिनकी डेथ हो गई बिकॉज दे डिड नॉट गेट. मदर को भी है. Although the village has a primary school, Lakha never went. क्योंकि वो 10 साल से काम कर रहा है. उनके लिए साबुन एंड ऑयल भी एक लग्जरी है. दिस इज टिपिकली वेयर वी से poverty comes. नाउ ये आपका पहला. आई हैड टोल्ड यू दैट देयर विल बी 2. आपके बुक में देर आर 2 एरियाज जहां पे आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कॉजेस. क्यों होता है ऐसा? व्हाई डू पीपल, व्हाई दे आर सो पुअर? फर्स्ट इज सिंस वी आर इन इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो लोगों के पास अपना लैंड नहीं होता है. दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, लैंडलेसनेस. सेकेंड इज अनएम्प्लॉयमेंट. साइज ऑफ फैमिलीज अभी आपने दोनों में पढ़ा. एक जो है 8 मतलब कि मेंबर है तो दूसरे के अंदर 6 मेंबर्स है. इलिटरेसी विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे ज्यादा रहता है हमारे यहाँ पर इलिटरेसी बिकॉज वी आर नॉट एजुकेटेड. आई बी शेयरिंग वन इंसिडेंट विद यू.
पुअर हेल्थ, मल नरिशन, मतलब बचपन से ही अगर इंसान, जैसे इसमें दिखाया था कि द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, वो बड़े होकर दे आर नॉट एबल टू वर्क इन दैट वे। चाइल्ड लेबर, बचपन से स्कूल नहीं गए, बचपन से ही लेबर काम कर रहे हैं, सो दे डोंट गेट एनीथिंग इन द लेटर स्टेजेस। ड्यू टू circumstances they might be helpless। ये हमारे कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से देयर माइट बी व्हाट वी कॉल एज पोवर्टी, देयर माइट बी पोवर्टी। एज आई टोल्ड यू, आई नो अ पर्सन, मतलब दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी। दैट पर्सन व्हाट हैपेंड इज, मतलब कि वो, you cannot call them as illiterate, neither they are landless nor they are family size, but lack of awareness. That person had a, मतलब उनके साथ में क्या था कि he was working, मतलब not very educated, बस ठीक था, 12th with पास था। he was working in a school, he got a job in a, मतलब ऐसे ही स्मॉल, उसमें स्कूल का मतलब ऐसा नहीं टीचर टीचर। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि व्हेन स्कूल के अंदर था तो he was not that much honest, sometimes he would be, you know, छुट्टियां बहुत मारता था वो, बहुत मारता था। अब स्कूल्स के अंदर व्हेन यू आर इनटू द जॉब, कहीं पर भी आप जॉब में होते हो तो विदाउट रीजन यू कैन नॉट बी टेकिंग द लीव्स। वो छुट्टियां बहुत लेते थे, तो छुट्टियां लेते थे तो नौकरी चली गई। अब उस इंसान को हमेशा रहता था कि मैं, अब उनका घर तो बहुत छोटा सा था, मुझे बताया था कि उनका एक कमरा ऊपर एक कमरा नीचे, तो वहां पर वो रहते थे फैमिली में, वो उसके मम्मी पापा उनके बहन पता नहीं कौन कौन है। तो दे हैड अ फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी सब कमाने वाला। इनके जो फादर था, ही वॉज अ ड्रंकर्ड, तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया था। वो पुलिस में कुछ, क्या कहते हैं उसको, जो पुलिस में गार्ड वार्ड होते हैं वैसे था, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। नाउ घर में जो दो कमाने वाला इंसान था वो दोनों ही बेकार। इन द मीन वाइल घर वालों ने इसकी शादी भी कर दी, शादी कर दी तो एक बर्डन और आ गया। वाइफ भी काम नहीं कर सकती थी, ये भी काम नहीं कर सकते थे। अब उसने जो है मोमो की दुकान लगाई है। अब मुंह में पानी नहीं आना चाहिए आप लोगों के। अब मोमो की दुकान में कितनी इनकम आएगी बताओ। नाउ हिज वाइफ इज वर्किंग एज अ पैकेज, जो पैकिंग करते हैं ना वो काम करती है किसी फैक्ट्री में, और इसके खुद के दो बच्चे और हैं। यानी कि पहले दादा दादी, मम्मी पापा, बहन, लड़का, उसकी बीवी, अब दो बच्चे, और कमाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा जो सिचुएशन होता है, इसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज व्हेन द अर्निंग मेंबर्स आर नॉट अर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, एंड नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर ईटिंग वो ज्यादा हो जाए, तो दैट बिकम्स अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज पोवर्टी। तो अब व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पोवर्टी, मतलब वैसे पोवर्टी का मतलब हो जाता है व्हेन पीपल आर हंग्री, दे डोंट हैव द शेल्टर। हम लोग देखते हैं, आपने रैन बसेरा देखा आप में से किसी बच्चे ने? रैन बसेरा देखा किसी बच्चे ने कहीं? सब बच्चे सो गए। Did I sing a lullaby that you all have slept?
Good. So my voice is so. Ma'am, I have not seen yet. मेरी आवाज कितनी मीठी है देखो, कि आप लोग सब सो गए, है ना? No, रैन ma'am. बसेरा होता मेरा बच्चा, रैन का मतलब होता रात, तो शेल्टर, the people who do not have the houses, they go to these shelter, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं रैन बसेरा। तो जो ऐसे लोग होते हैं जैसे आपके रिक्शा वाला वगैरह होते हैं, इनके पास अपनी रिक्शा नहीं होती है, ये लोग जो है दे टेक इट ऑन रेंट, तो ये लोग रैन बसेरा में जाके रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज मेड रैन बसेरा मेनी एट मेनी प्लेसेस। It also is a situation in which parents are unable to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water, sanitation, टॉयलेट्स नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे, मैंने उसका नाम क्या है, देर आर मेनी, दिलशाद गार्डन के अंदर भी हैं वो टॉयलेट्स, वो उसका नाम क्या है, वो मोबाइल वाले टॉयलेट्स होते हैं, विच आर so dirty. They don't have facilities of toilet and water in their house. Lack of regular job at minimum decent level. मैंने अभी जो आपको एक मोमो की कहानी सुनाई थी, means living with a sense of helplessness. Such people are ill treated at almost all the places. कहीं पर भी जाओगे क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. Abject मतलब extreme. ये वाला जो line है, this comes in the paper. Who said it? Mahatma Gandhi said that India would be truly independent when the poorest of its people become free of human suffering. Human suffering means food, shelter, clothing. Now, what is the definition given by social scientists? मतलब ये तो हमारा एक जनरल है, पुअर किसको बोलते हैं, जिनके पास ये सब चीजें नहीं होती। Since poverty has many facets, facets मतलब many dimensions, हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं किसको पुअर बोलते हैं। As I said that in countries like US, even a person who is having a car can be poor. इंडिया के अंदर आप बोल के देख लो, मैं पुअर हूँ, मेरे पास कार है, आपको लोग जो है बड़े बड़े सींग लेकर आपके पीछे आएंगे, अच्छा तो तुम पुअर हो, अच्छा मैं बताता हूँ। इन इंडिया ओनिंग अ कार इज लग्जरी, अब्रॉड ओनिंग अ कार इज मजबूरी। सो देयर इज अ डायमेंशन, देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स, और हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं, दिस इज द आंसर, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब हम कितना कमाते हैं और हम कितना कंज्यूम करते हैं। Poverty is looked through other social indicators like illiteracy, lack of general resistance due to malnutrition, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति ना होना, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to drinking water, sanitation, ये सब कुछ आपका जो है poverty का है। If a person is not having the access, that means that person is somewhere or the other poor. अगर अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आर देयर। हाँ, हो सकता है एक जगह ही मे बी गेटिंग वन सैलरी, दूसरी जगह दूसरी। नाउ दैट डे आई टोल्ड यू वन क्वेश्चन, ये रहा, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, both a cause as well as consequence of poverty. तो सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता, यानी कि दैट पर्सन इज
excluded from the society. That person is excluded from the society. क्यों? What are the reasons कि उसको exclude कर दिया जाता है? According to this concept, poverty must be seen in terms of having to live only in poor surrounding with other poor people. Excluded from enjoying social equality of better surroundings, better of people. मतलब they are not given equal treatments by the people. क्यों? ऐसा क्यों होता है? First, it is a process through which individuals or groups are excluded from the facilities, benefits and opportunities that others enjoy. क्यों? क्योंकि वो पुअर है, वो पुअर है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं. लाइक हमारे यहाँ पर दलित, द वर्ड दलित मीन्स एक कम्युनिटी को, एक दल को अलग कर देना. And why? Because they may be belonging to certain community, certain caste. उनको इसलिए बिलोंग कर दिया जाता है. तो अगर उनको वो सब चीजें नहीं मिलती, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है long before. हमारे यहाँ पर you know that in India we are following the caste system. तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके हायर कास्ट हैं, पहले ज़माने की बात कर रही हूँ, and I am completely not as a teacher but as a human, as Rama Raghavan, I am against all these systems. I'm against every system. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता था. मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है that जो एक पर्टिकुलर एक हिरार्ची बना दी थी, ब्राह्मण्स दे आर एलिजिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन. ब्राह्मण का मतलब ही वो है जो कि मंदिर में जा सकता है, जो एजुकेशन ले सकता है. देन सेकंड आपके मतलब कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय. तो क्षत्रिय वो जो कि आर्म्स उठा सकता है. ही मे और मे नॉट बी एजुकेटेड, लेकिन उसका एजुकेशन आर्म्स में होगा. देन आपके वैश्य जो कि बिजनेस कर सकता है, दोज हुआ. तो ये लोग आपस में इनका एक हिरार्ची था, एंड द ब्राह्मण्स वर कंसिडर्ड एज द सुपीरियर्स. ऑन द अदर हैंड जो आपके सबसे लास्ट में आते हैं, जिनको हम शूद्र बोलते हैं, they were the one who were supposed to do all the odd work. झाड़ू पोंछा, मंदिरों की सफाई, मतलब कि उसका नाम क्या, डेड बॉडीज उठाना, ये सब. सो व्हाट हैपेंड इज कि वो लोग उस कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको जो है दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन द स्कूल्स. उनके बच्चों को बराबरी स्कूल में नहीं दी जाती थी. दे वर नॉट इवन अलाउड टू कम इनटू द स्कूल्स. They were not allowed to come into the public places. They were not allowed to draw water from the well. उनको मारा पीटा जाता था, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो लोग सब अलग हो गए. They started living outside the villages, जहाँ उनके लिए एक्सेस था ही नहीं. उनको जो जब गांव में कोई काम होगा तभी उन्हें बुलाया जाता था, उनको पैसा मिल गया तो मिल गया. तो धीरे 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 वो जो एक कम्युनिटी थी, that started becoming poor. So this is one of the cause. The second is, sometimes what happens is a person may not be as poor as others, as rich as others. हम उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते. इवन फैमिली में ही 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो यार उसको मत बुलाना, वो फटे कपड़े पहन के आ जाएगी. धीरे 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 व्हाट हैपेंस इज दे बिकम, हमसे अलग हो जाते हैं, वो अपने पुअर में रहना शुरू कर देते हैं. सो बोथ इट इज कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल एज, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं. सो दैट इज व्हाई व्हेन अ पर्सन इज एक्सक्लूडेड
that leads to major damage. Now second is vulnerability. vulnerability का मतलब क्या होता है बेटा? कौन है जो कि पुअर होने के ज्यादा चांसेस है? ये तो था सोशली एक्सक्लूडेड जो होते हैं, ये तो होते ही होते हैं. दे आर वल्नरेबल because those who are belonging to such caste, they become vulnerable. Secondly, there might be people like widow. Now why this word widow has been used here? This is because in the earlier times, पत्नी लड़की की शादी हुई, she bought some dowry, she used it, later on husband की death हो गई, husband की property बच्चों में चली गई, तो nobody looked after the woman. Physically handicapped, they are vulnerable. ऐसा नहीं है कि वो होते हैं. vulnerable का मतलब है they have the chance of becoming poor more, and this is the truth. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job. मतलब अगर उनको ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो दे आर ऑन द डेंजर ऑफ बिकमिंग पुअर. देन एनी डिजास्टर्स, earthquake, tsunami, terrorism, during the assassination of Indira Gandhi, ड्यूरिंग द असैसिनेशन ऑफ असैसिनेशन मतलब उनके मारने के वक्त, उनकी जब उनको मार दिया गया था, उस वक्त में क्या हुआ था? देयर वाज कम्युनल वायलेंस. देयर वाज कम्युनल वायलेंस क्योंकि उनको मारा था सरदारों ने, तो लोग सरदारों के दुश्मन बन गए. ऑल ओवर इंडिया देयर वाज, स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ, इतना खून खराबा था. एंड आई नो पीपल, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची थी उस वक्त में, द पीपल जो बहुत रिच थे सरदार, उनको उनके घर से 3 मंजिल से नीचे उठा के फेंक दिया. उनके सारे जो चीजें थी, वॉट एवर दे वर हैविंग, एवरीथिंग वॉज स्नैच्ड. अब जो उनके घर में थे, जो लोग बाकी बच गए थे, they all had to live a miserable life. So such disasters, अभी मैंने आपको उस दिन उत्तराखंड का बताया था, when the disaster hit Uttarakhand, if you want to see the origin, मतलब कि उसका थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो you can see the movie केदारनाथ, उसमें एंड में दिखाते हैं. So when पूरी की पूरी बिल्डिंग्स टूट गई, where will people go? Some of them will be, जैसे हमने वो चैप्टर में पढ़ा था, weathering in the storm of Ersama, where they will go? Sometimes they don't have any, उनके पास, अब आपको भी अपना रोल नंबर थोड़ी याद होगा, आप सीबीएसई में जाकर रोल नंबर कैसे मांगोगे, सर्टिफिकेट्स? एट दैट पीरियड ऑल्सो पीपल बिकम. सो इस तरीके से यस, वी हैव टू हैंडल सच सिचुएशन. लेकिन ऐसा टाइम होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, एनीथिंग, जिस वक्त में जैसे अभी हुआ हमारे साथ पैंडमिक. पैंडमिक इज, आप लोगों के लिए तो पैंडमिक इज द लाइव एग्जाम्पल, क्योंकि पैंडमिक में पता नहीं कितने लोगों ने they had taken, मतलब they had to leave their lives. कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई. I know many people who had lost their jobs. I know many people who had to come down to, पता नहीं, अभी मैं कल या परसों में I was reading a graph, मतलब कि दिल्ली का था, दिल्ली की में था,
उनका क्या था कि अकॉर्डिंग टू द मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट, दे से दैट around some percentage of people have taken their children out of the public schools and put them into government. पैसे नहीं थे, पेरेंट्स के पास पैसे थे ही नहीं, कहाँ से लाते पैसा जब फादर की इनकम नहीं है। जब फादर की इनकम नहीं है तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो दे हैड टू कम डाउन। किसी किसी को अपना मकान बेचना पड़ा। आई हैड नोन वन पर्सन, they had married off their daughter, and later on they had to sell off their house. तो देर आर मतलब कि ऐसा होता है, देर आर दीज आर द सिचुएशंस। नाउ कम, हाउ डू वी अज्यूम कि ये इंसान गरीब है, ये इंसान अमीर है, कैसे हम करते? तो लेट अस कम। तो इन अ सिंपल वे हमारे लिए होता है पोवर्टी लाइन। व्हाट इज पोवर्टी लाइन? इट्स एन इमेजिनरी लाइन, इट्स नॉट अ लाइन जो हमें दिखेगा। ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब अगर हमारी कमाई इतनी है तो हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ देखो बेटा, कमाई की तो कोई वैल्यू वो नहीं है। देर इज नो व्हाट वी कॉल एट मैं इतना कमाऊं तो मैं, अमिताभ बच्चन जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो उनकी बात सुनकर हंसती हूँ। ही सेज जीना है तो कमाना पड़ेगा, और मुझे बड़ी हंसी आती है उनको देखकर। मैं कभी कभी मतलब कि आई सर्टेन टाइम से, भाई अगर इनको जीना और इनको कमाना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बट पोवर्टी लाइन इज हमारा जो इनकम और कंजम्पशन लेवल है। मतलब वी शुड हैव मिनिमम जो हमारे बेसिक नीड्स है। हमारे बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल falls below a minimum level of which is necessary for basic needs. ये मैं आपको जो बार बार बता रही थी, what is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries. पोवर्टी लाइन में वैरी विद टाइम एंड प्लेस। आज से 10 अभी आप मेरे पास जो भी बुक है, दिस इज एन ओल्ड वर्जन, आप लोग अपने नए वर्जन को लेकर चलोगे। दिस इज 2015 एंड 16 का है। आपको नए वर्जन को लेकर चलना है कि व्हाट इज अ पोवर्टी एस्टिमेट। मैं जब आपको नोट्स दूंगी उसके अंदर भी लिखा हुआ होगा। ईच कंट्री यूजेस इट्स एन इमेजिनरी लाइन that is considered appropriate for its existing level of development and minimum accepted social norms. मतलब अगर हमें उस कंट्री में उस जगह पे रहना है तो एक मिनिमम तो चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, a person not having a car in US may considered poor, but in India owning a car is still considered luxury. ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ तो किसी के पास इफ यू आर हैविंग कार और यू आर हैविंग then you are supposed to, भाई कार होना तो it's rich, but in US it's actually मजबूरी है। I have my cousins, तो मतलब they are in fact with God's grace they are super rich, but वो बताते वहां पर कि वहां there are एरियाज जहां पर बहुत सर्दी होती है, देन देर आर एरियाज जहां बहुत गर्मी होती है, मतलब एक्सट्रीमिटीज होती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द एरियाज लाइक इन कैनेडा ऑल्सो। सो दे हैव टू उनके लिए तो आदत तो हो जाती है, बट यू डोंट। तो वहां पर क्या होता है कि दे हैव देयर सेल्फ इक्विप्ड कार जो कि पूरे वो स्नो को निकालते हुए जाती है। तो कार होना जरूरी हो जाता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स अ जरूरत। Whereas in India, if you are having car, if you are having considerably आपके पास अपना एक मतलब कि दिल्ली के अंदर if you are having one bedroom also, it is also considered कि the person is well off. बॉम्बे के अंदर
बॉम्बे के अंदर आज से 20 years back owning a 1-bedroom house was considered luxury. This is because Bombay is one of the costliest city in the world, not in India, in the world. So वहां पर it is really very difficult, मतलब कि वहां पर जो है आपके पास अगर आपने जो है एक कमरे का घर एक अच्छी बिल्डिंग में खरीदा है तो यू आर रिच. You don't need to have a plot and all, but you even have a flat तो भी बहुत रिच माना जाता था. इनफैक्ट जितने आपके बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हैं इनमें से आज का तभी आई हैव सेड 20 years back even they used to have their flats only. तो that is what कि कंट्री से कंट्री डिफर करता है एंड इवन स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. इन इंडिया इन दिल्ली even if you are having your own house it is okay, but in Bombay if you are having a flat it is that difference. So हम डिटरमाइन कैसे करते हैं पॉवर्टी लाइन को. अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम खाना, फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल. ये हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए. सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीस. मतलब एक इंसान को 2 वक्त का खाना चाहिए. अब मैं कितना खाती हूँ उस दिन आपको मैंने बताया था कि मैं तो एक रोटी दो टाइम में खाती हूँ. अब हमारे घर में 4 जने हैं तो 4 जनों का खाना अलग अलग आता है. तो रोटी की कीमत, क्लोथ्स, हम क्या पहनते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम. देन जो हमारे डेली का खर्चा. फिर हम देखते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए. दैट इज डिटरमाइंड बाय द कैलोरी रिक्वायरमेंट. एज आई सेड इट विल डिपेंड ऑन मेल, फीमेल, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया. अगर मेल है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. मोर ओवर अ पर्सन हु इज इन अ रूरल एरिया उसको ज्यादा. क्यों? क्योंकि उसको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है. उसको भाई हल चलाना पड़ता है. Whereas a person who is living in urban area requires 2100 calorie. ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है बेटा. और इस कैलोरी रिक्वायरमेंट को हम लोग जो है मतलब पर कैपिटा से हम देखते हैं कि उनकी कितनी कमाई हो रही है. तो हम देखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज एन ओल्ड डेटा आई एम टेलिंग यू, सो आई एम टेकिंग दिस राइट नाउ, बट अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 उस वक्त 816 रुपए फॉर रूरल एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया वॉज फिक्स्ड. According to the what we call as calorie requirement. Now why do we require more in urban area and less in rural area? This is because in urban areas जो आपके प्राइजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं. आप यहाँ आलू खरीदोगे 30 रुपीज किलो, आप वहां खरीदोगे कम होता है. देयर इज ऑलवेज. सो दैट इज व्हाई इन रूरल एरियाज 4000 रुपए है, उससे कम है तो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है, बीपीएल माना जाता है. इन अर्बन एरियाज 5000 से कम. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर पेपर इज, ये कौन एस्टिमेट करता है? Who does this? Who does this? तो हमारे यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो है, इट इज द वन हु कैरीज आउट दी सर्वेज इन डिफरेंट एरियाज एंड देन इट ऑल्सो कंपेयर्स विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड ये देखता है कि किसी भी जगह पर किस कंट्री में कितना रिक्वायरमेंट. एंड ये लोग डेटा को इकट्ठा करते हैं. ये डेटा को इकट्ठा करते हैं. एक घर में कितने लोग रहते हैं. हम लोग जब हमारा सेंसस होता है उसके थ्रू, NSSO के थ्रू, आपके सेंसस के थ्रू आपको उनके पास डेटा आता है. फिर दे गो एंड कलेक्ट, इनकी कलेक्शंस होती हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट किसी के घर में कितने मेंबर्स हैं, कितनी कमाई हो रही है, ऐसे. सो नाउ इट इज सेड दैट इंडिया में जो पॉवर्टी
मतलब कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द पोवर्टी रेशियो। पहले हमारा मतलब कि फ्रॉम अबाउट 45% to 37, but still you cannot call that we are developed or we. And if the trend continues, people below poverty may come down to less than 20%. Although the percentage of people living under poverty declined, but number of poor has not. क्योंकि हमारा एवरेज इनकम थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली पुअर हैव नॉट। नाउ इज हु आर वल्नरेबल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वल्नरेबिलिटी एक फैक्टर है, तो हु आर द वल्नरेबल पीपल? देयर कैन बी डिफरेंट पीपल, is not same for all social groups and economic. Social groups which are most vulnerable are scheduled caste, scheduled tribe. Then जो रूरल एरियाज में आपके लेबर्स हैं, अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, वो according to the survey it is said that 48 out of 100 people belonging to scheduled tribe in rural are not able to meet their basic needs. एंड इन द अर्बन एरिया जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं डेली लेबर्स, अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर्स एंड 43 ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। मतलब लैंडलेस भी है एंड देन दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, दे बिकम पुअर। एंड दिस इज वन ऑफ द reality of our country. Moreover, देर आर अदर, मतलब शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, ये हमारे हैं। उसके अलावा विमेन, एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग, फीमेल इन्फेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्ल्स आर नॉट वेलकम, दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। They are the one, these are the people who are more vulnerable. कोई भी ऐसा सिचुएशन होता तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को जो है परेशानी होती। Now the last topic for today is interstate disparities. I told you that it's not that कि इंडिया के अंदर सब पुअर है या फिर सब अमीर है। there have been states जहाँ पे आपके बहुत रिच है, गुजरात में काफी रिच है आपकी, बट देर आर स्टेट्स जहां आपके बहुत ज्यादा पुअर है, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। Although state level poverty has witnessed a secular decline, but still it varies from state to state. Like आपका मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा had above all India poverty line. But Bihar and Odisha still continues to be the poorest states. थोड़ा बहुत आपका along with the rural poverty, urban poverty आपका है उड़ीसा, मध्य प्रदेश। urban poverty मतलब casual laborers, those who are living in the urban areas. There has been a, yes Yash? Ma'am, in Gujarat, ma'am, there are rich people, and in Bihar there are poor. So, ma'am, why there is this thing, ma'am? Because, ma'am, Bihar is small, but Gujarat is big, and ma'am, Gujarat, ma'am, is rich, but Bihar is so small. It's not in that So, way. ma'am, why? Yeah, that is what we are reading now. Why? Because if you go to Gujarat's history, you will find people more Gujaratis as businessmen. टू नेम अंबानी, अदनानी, ये सारे आपके अदानी, ये सब जो हैं गुजरातीज हैं। अमित शाह, दे आर ऑल, दे आर वेरी, मतलब कि दे हैव यूज देयर स्किल्स। शुरू से ही आपका गुजरात जो था वो पोर्ट था, तो जब भी बाहर से लोग आते थे तो जितना भी आपका बिजनेस चलता था वो आपके पोर्ट्स में चलते हैं। तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो पोर्ट एरिया, वहां पर आपके जो है दे हैड दैट, तो इसीलिए दे कुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। वेयर आपका बिहार अंदर की तरफ पड़ता है, वहां डेवलपमेंट कम हुआ था, द स्कूल्स वर नॉट देयर, द मेडिकल फैसिलिटीज नॉट देयर, अभी भी वहां पर नहीं है। सो हाउ पीपल विल बिकम, मतलब वो कैसे करेंगे?
That is what So हमने. ma'am, like ma'am, Bihar, ma'am, it is so inside India, but ma'am, Gurgaon, ma'am, it is rich people, but ma'am, it is surrounded by different thing, and it is in India, Which is and ma'am, it is not a port. which Gurgaon? Yes, ma'am. Very good, very nice question. Gurugram is not rich. You have people of all the spheres in Gurugram. But Gurugram jo hai, it is developed. It is not rich. It is developed. And why it is developed? Because all of the software companies have made their base in Gurugram. आप चाहे सैमसंग ले लो, चाहे आप एयरटेल ले लो, चाहे आप मैकेंसी ले लो, चाहे आप जेनपैक ले लो, ऑल द मेजर एमएनसीज हैव इंस्टॉल्ड. मतलब उन्होंने जो मतलब कि अब ये जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने, हरियाणा ने अपने आप को कैसे पॉवर्टी से लड़ने की कोशिश की थी. उन्होंने जो है लैंड दिया, they gave this land, and Haryana, the Gurgaon जो है, that is very near to this Indira Gandhi International Airport. तो लोग तो यही चाहेंगे कि उनके ऑफिसेस एयरपोर्ट के पास में हो. तो जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने मतलब कि कंपनीज खोलने के लिए बोला, तो हरियाणा ने उनको सस्ते दामों पर जो है जमीन दी थी. दे यूज दैट अपॉर्चुनिटी. उनको जो है उससे मतलब कि दे गॉट द व्हाट वी कॉल एज द इनकम टैक्स, दे गॉट द रेवेन्यू टैक्स, दे गॉट द रेंट, एंड दे कुड डेवलप दैट एरिया. दैट इज वाई. यही तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में बेटा, कि वाई कुड नॉट दे डेवलप, क्योंकि उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं लिया. They have not taken those opportunities. The government has not still taken opportunities. वहां पर आपके इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं की, वहां के एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया, वहां के एजुकेशन सेक्टर को नहीं डेवलप किया. दैट इज वाई स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर पॉवर्टी. Whereas these, अभी हम पढ़ेंगे ना, these states, there has been a significant decline in Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, West Bengal. How? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर को फाइट करने के लिए दे टुक ग्रीन रेवोल्यूशन. केरला फोकसेस मोर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. 100% लिटरेसी है वहां पर. दे इवन गो, मतलब वहां केरला में तो बड़ा इजी है. वी वेंट टू दुबई. यू वोंट बिलीव, हम जब दुबई गए ना बच्चा, मतलब दुबई जाने के बाद पता हमारा पहला क्या था? यार दुबई तो दुबई जैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि वहां मैक्सिमम वी कुड फाइंड इंडियंस, एंड ऑल द कैब ड्राइवर्स वर फ्रॉम केरला. और मतलब कि ऐसे ही थे, मतलब हम वहां पर वो बीच गए थे, वहां पर वो एक वो डेजर्ट है, वहां गए थे. तो वी हैड, तो दे गो, दे अर्न. वो लोग एजुकेशन हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते. वेस्ट बंगाल में दे टुक द मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने पहले लैंड्स को जब्त कर लिया था, गवर्नमेंट ने उनसे लैंड लेकर पुअर पीजेंट्स को देने की कोशिश की. In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, they have focused on PDS. PDS का मतलब होता है सस्ते दामों पर आपको जो है ग्रेन्स देना. They gave grains on, उसका नाम क्या, तमिलनाडु एंड आंध्रा में आप मानोगे नहीं, 2 रुपए किलो चावल मिलते थे. और प्रॉपर चावल, कंकड़ वाले नहीं, चावल प्रॉपर. एंड इवन दे गेव सो मेनी स्कीम्स. जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, जितने सीनियर सिटीजन हैं, सबको वहां पे मिक्सी और टीवी जो है फ्री में मिलता था, सबको. तो दे हैड इंश्योर्ड, गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स बनाए थे जिसका फायदा लोगों ने उठाया, और वहां पे जो है दे कुड फाइट दैट पॉवर्टी. क्योंकि कुछ चीजें अगर आपको मिल जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आप, हम लोगों के लिए भी, इवन इफ मैं कहूँ, मेरी डॉटर्स दोनों को अगर एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में बेस्ट एजुकेशन मिल जाता, हेल्थ का मिल जाता, तो मैं अपना पैसा जो है आई कुड इन्वेस्ट. लेकिन हम लोगों को वो चीजें मिलती नहीं है. एंड जो पुअर होते हैं उनको तो बिल्कुल एक्सेस ही नहीं होता. They don't have drinking water, they don't have this washroom facilities. बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है. And that So is ma'am, why do not poor people go in government schools?
हाँ बेटा, Ma'am, why poor people do not go in government schools? दे गो बेटा, ऐसा नहीं है, दे गो, बट बहुत सारी बात होती है ना बेटा। अब कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल a poor child wants to go to government school, but पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, पुअर है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जाके काम करे। आई नो, व्हेन आई वाज हैविंग माय इंस्टीट्यूट इन दिलशाद गार्डन, तो आई यूज्ड टू हैव, मतलब वहां पे ना मतलब वहां पे एक कूड़ा उठाने वाली आती थी, मैं उसे बहुत इरिटेट होती थी, फ्रैंकली मैं बहुत इरिटेट होती थी, क्योंकि उसके ना 8 या 9 बच्चे थे। तो वो क्या करते थे, मतलब कि वो आएंगे एंड दे वुड कम, एंड छोटे छोटे बच्चे, कितने, 5 years 6 years, दे वुड बी पिकिंग अप द रैग। मैं उनको हमेशा डांट लगाती। उसकी मदर हमारे यहाँ पर वो कूड़ा उठाने आती थी, तो आई यूज टू टेल कि भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो। तो उसके बच्चे बोलते नहीं नहीं हम स्कूल जाते हैं। मैंने कहा कब जाते हो, सारा दिन तुम यहाँ पढ़े। तो इस स्कूल से हमारा नाम कट गया, हम गांव चले गए थे ना। दे डोंट वांट टू, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो वो कूड़ा उठाने के लिए अपनी मम्मी के साथ नहीं आ पाते थे। देन वन डे आई मेड एन अनाउंसमेंट, टांगे तोड़ दूंगी अगर तुम नीचे मेरे पास आए, मेरे यहाँ पे कूड़ा उठाने। तो आई टोल्ड हर मदर, देयर मदर, तुम उठा सकती हो उठाना, अदरवाइज योर चिल्ड्रन शुड नॉट कम हियर। और आप मानोगे नहीं, दिस इज ट्रुथ, दिस इज ट्रुथ। मैंने उसको हटा दिया था, मैंने कहा मैं खुद, मेरा क्या कूड़ा होता है, मेरे तो पेपर्स होते हैं, मेरे तो पेपर्स होते हैं, तो मैं तो उठा के वो जो ईडीएमसी वाले आते हैं ना, तो मैं खुद डाल के आ जाऊंगी। बिकॉज आई, एंड समटाइम्स आई यूज टू सी देम, बट दे यूज टू वर्क। हम लोग क्यों, हम मना थोड़ी करते, मैं तो करती थी, मैं तो करती थी, बट लोग मना नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है मैडम, वो स्कूल जाए या ना जाए, हमें क्या जाना। और पेरेंट्स को होता था कि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो चलो, तो दे डोंट गो टू द स्कूल। देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स ना, ये बहुत लंबा चलता रहता है। दे डोंट सेंड, और उसकी वजह से दे डोंट वर्क। और बाद में क्या होता है, इवन दे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं तो दे कैन नॉट गेट अ जॉब। आपको मिनिमम तो लिखना पढ़ना तो आना चाहिए। एक इंसान को पीएन बनने के लिए भी द पर्सन नीड्स बेसिक क्वालिफिकेशंस, सो दे बिकम, वैसे बन जाते। समटाइम्स दे फॉल इनटू रॉन्ग हैबिट्स, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, and thus they are deprived of these factors. ठीक है, चलो, we will discuss about it at length in the next class, right?